ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا خوشبو کثرت سے لگایا کر، خوشبو کثرت سے لگایا کر۔ آج بھی میں نے ایک بوتل ختم کی ہے۔ ہاں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہے ہی چیز، ہاتھ پہ لیا ایسے جیسے تیل لگاتے ہیں، ایسے مل کے نا اندر کپڑوں کو لگایا، پھر لیا جیسے تیل لگاتے ہیں، یہ تم یوں 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 لگاتے ہو، یہ بھی بات ہے۔ اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 3 چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے گہرائی میں پانی، پہاڑ سے پانی کبھی گرتے دیکھا ہے؟ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، ہر وقت باوضو رہے گا، ہر وقت رہنے کی کوشش کرے گا، رہے گا، خوشبو بکثرت لگائے گا، اور سفید لباس پہنے گا، اور اگر نہیں پہن سکتا مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی اس سنت کو زندہ کر دے گا۔ کوشش تو ہے ہر وقت پہنے، اگر نہیں بھی ہو سکتا، بعض پیشے ایسے ہیں، بعض شعبے ایسے ہیں جس میں انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، نیت تو کر لے۔ اچھا ان 3 چیزوں سے ملے گا کیا؟ اور میں عزت، دولت اور وجاہت اور رزق ایسے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے۔ تو خوشبو لگایا نہ کریں، خوشبو تھپا کریں۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مفتی تھے۔ رات ہم کمرے میں بیٹھے رہے، ساری رات مدینہ کی باتیں کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، تہجد کی اذان ہوئی، اور پھر ہم فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ کپڑے بدلنے کے لیے تو خوشبو کی شیشی لی، وہ ہاتھ میں ایسے ڈالی، ایسے ڈالی، ڈال کے نا ایسے ملی، اور اپنی اندر کی بنیان کو ملی، پھر ملی، پھر ملی، ادھر ملا، ادھر ملا، ادھر ملا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، ساری شیشی انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ملی، اور پھر قمیص پہنی اور اوپر چادر اوڑھی، اور ہم چل پڑے۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے جان جان کے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو؟ چلو میں نے کہا جان کے کرتا ہوں، کچھ مل جائے گا آپ کی باتوں سے، آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی میں خوشبو لگاتا ہوں 2 چیزیں مجھے نقد ملتی ہیں، 2 چیزیں نقد ملتی ہیں، ایک علم اور بے بہا ملتا ہے، اور اللہ غیب سے اپنے علم کے دروازے مجھے کھول دیتا ہے، اور ایک رزق، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں میرا گمان نہیں ہوتا۔ اور کہا تیسری بھی بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتا دیں۔ کہا اللہ عزت بہت عطا فرماتا ہے۔ خوشبو لگایا کریں۔ کیوں؟ دیکھو منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ آپ فرشتوں کو غذا دیں گے، آپ نیک جنات کو خوشبو کے نام پہ غذا دیں گے، تو یہ فرشتوں کو غذا جو دینے والا ہے اور نیک جنات کو غذا دینے والا ہے، کیا خیال ہے یہ آپ کا لحاظ شرم حیا نہیں کریں گے؟ کو غذا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف پہ نہیں گھڑ رہا، یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، یہ فرشتوں نیک جنات کی غذا ہے، نیک جنات کی غذا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ایک ان کا ورکشاپ تھا، اور ایک استاد تھے، ایک استاد ان کا نام تو عاشق تھا، لیکن استاد عاشق فراڈیا کہتے تھے۔ اگر عاشق کہتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھتا تھا جب تک عاشق فراڈیا نہ کہیں۔ تو استاد عاشق فراڈیا کے ساتھ ایک دوست ہے ان کا، مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارا دوست ہے، ان پہ جن آتا ہے، جو سوال کرو۔ میرے پاس خس پڑی تھی کوبرا برانڈ کی، انڈیا کی، میں نے وہ بوتل لے لی اپنے ساتھ، میں نے کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں جا کے بیٹھا تو میرا نام لے کے کہنے لگے، وہ ان کے اوپر جن کی حاضری تھی، ان کے ورکشاپ میں وہ عام سا مستری تھا، یعنی مستری بھی نہیں تھا، ہیلپر جسے کہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے ہدیہ بھی لائے ہیں، تحفہ بھی لائے ہیں، اور جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں، خس تو دیں ہم پئیں۔
तो मैंने बोतल दी, ऐसे मुंह पे लगाई और ऐसे खींची जैसे ना वो बकरे की नली खींचते करते ना ऐसे। मैंने देखा तो बोतल में एक कतरा ही नहीं था और धुली हुई बोतल थी। कहने लगा बड़े अरसे के बाद आपने हमारा दस्तरखान दिया। इनको एहसास ही नहीं कि मेरा दस्तरखान, मेरा खाना क्या है, मेरी ग़िज़ा क्या है। फौरन जाके अपने अकाबिर की एक बात दिल पे लगी, वो भी सुनाता जाऊं आपको। हजरत जी मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे और हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब बड़ों बड़ों के मुर्शिद थे। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब कुरान पाक पढ़ाते थे बच्चों को, और हर बच्चे को खुशबू की इतर की शीशी तो उनके पास होती थी और लगाते थे, और फरमाते थे मैं जिस बच्चे को ज्यादा इतर लगाता हूं उस बच्चे को कुरान जल्दी हिफ्स होता है, जल्दी याद करता है। और फिर फरमाते थे बाज़ औक़ात मैं खुद एक एक शीशी जो है वो लगा लेता हूं, और फिर उनके पास जिन्नात के बच्चे भी पढ़ते थे, जिन्नात के बच्चे। तो जिन्नात के बच्चों को कहते थे लो ये बोतल है तो मैं दूंगा, अभी पी जाओ, पर कुरान मुझे जल्दी हिफ्स करके दो, याद करके दो। और जिन्नात के बच्चे वही कुरान वो पी लेते थे और कुरान हिफ्स करके याद करके देते थे। एक और वाकया सुनाऊं। एक बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे, मैं उनकी खिदमत में बैठा हुआ था, बहावलपुर में उनकी खिदमत में बैठा हुआ था। किसी ने आके उन्हें शीशी दे दी इतर की, तो फरमाने लगे एक ही दी है। उसने दूसरी भी निकाल के दे दी, कहा दो दिए हैं, उसने तीसरी भी निकाल के दे दी। फरमाया तीन दिए हैं, कहा तो बस यही थे, तीन शीशियां ली थी, दो अपने लिए, मैंने कहा एक अपने मैं मुर्शिद को हदिया दूंगा, और ये मैंने एक आपके लिए रख ली थी, और ये आपकी खिदमत में हदिया है। हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं। उनके खादिम थे अब्दुल गनी साहब, ये मैं उनके खिदमत में बैठा था। तो मैं हजरत ने फरमाया अच्छा भाई तेरी मेहरबानी, तूने आज मेरा एक दोस्त आना है, तूने उसका मुझे अच्छा खाना दे दिया। उन्हें हजरत ये इतर दिया, मैंने खाना तो नहीं दिया, पर मैं तेरे लिए इतर है पर मेरे दोस्त के लिए खाना है। तो अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहने लगे कि हकीम अब्दुल गनी साहब शाही बाजार में उनकी दुकान थी, कहने लगे कि शाम को हजरत के यहाँ इशा के बाद मैं हजरत के पांव दबाता था मुर्शिद के, और पांव में तेल लगाता था, दबाते दबाते हजरत सो जाते थे, मैं चुपके से उठ के आता था। मैं हजरत सो गए तो मैं उठ के आने लगा, तो थोड़ी देर में हजरत ने मुझे आवाज दी, मैं गया तो फरमाने लगे मेहमान आने वाले हैं, वो इतर की शीशियां ले आओ जो आज एक बंदे ने हदिया ला के दी है, और बहुत अच्छा इतर ला के दिया है, घटिया इतर ला के नहीं दिया, क्योंकि हमारा मेहमान शाही है और घटिया दस्तरखान में पसंद करता। और वाकई ऐसा है। तो कहने लगे कि वो थोड़ी देर हुई, मैं बोतलें ले आया, बहुत आला क्वालिटी का बेहतरीन इतर था। अब तो इतर आना ही खत्म हो गया, तेल के अंदर खुशबू मिला के वो इतर बन जाता है। पहचान वाले भी खत्म हो गए, लगाने वाले भी खत्म हो गए, छू 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 छू। और यही चीज आई, परफ्यूम, फुवारा चला और खत्म, वो ज़ौक़ ही खत्म हो गया। जब पहचान वाले ही नहीं होंगे तो फिर आगे भी बेचने वाले भी वैसे हो जाएंगे, इतर ही खत्म हो गया। तो कहने लगे कि मैं इतर की शीशी लेके ही आया था, तो एक बूढ़ी खातून आ गई अचानक और आके बैठ गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये खातून कहां से आई। अचानक ख्याल आया तो खुद तो फरमाया था मेहमान आने वाले हैं, जिन है या जिननी है। वो बैठ गई, साथ चारपाई पे हजरत बैठे हुए थे, और कहा मैंने अंदाजा लगाया कि खातून की उम्र कोई 90 से भी ऊपर होगी, बहुत बूढ़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरा, चेहरे पे नूर, मुंह में कोई दांत नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत ने फरमाया मौलवी अब्दुल गनी, जी हजरत, मैं इसको मैंने इतर दिया और उसकी पिन ऊपर से खोल के उन्होंने ऐसे मुंह में लगाया, बस ऐसे साथ रखा, मुंह से नहीं लगाया, शीशी खाली थी, ऐसे साथ
सूंघ लिया, सक कर लिया। मैंने दूसरी शीशी दी, वो खाली। मैंने तीसरी शीशी दी, खाली। और कहा उन खाली शीशियों को मैंने उल्टा करके रखा, चलो नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं मिला, इतना साफ था। उल्टा करके रखा कि मैं नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं। और कहा कि वो खातून कहने लगी हजरत अफगानी को रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज तो बहुत लाजवाब दस्तरखान सजाया, बेहतरीन खाना दिया, ये किसने लाके दिया? हजरत फरमान लगे मेरा एक मुरीद है, उसने तो मुझे एक शीशी दी थी, मैंने दिल में इरादा किया हुआ था कि आज आमद है तो आज 3 शीशियां होनी चाहिए, बस मैंने कह दिया, उसके जेब में 3 शीशियां थी और तीनों से जरूरत पूरी हो गई। फरमाया कि मैंने उनसे पूछा हजरत कुछ सवाल की इजाजत है? हाँ करो। तो मैंने उनसे पूछा कि खाला ये बताएं, खाला कहा खाला ये बताएं इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात को क्या मिलता है? तो कहा खाला देख के कहने लगी बेटा इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात दोस्त भी बन जाते हैं, मुखलिस भी बन जाते हैं, मोहसिन भी बन जाते हैं, हमदर्द भी बन जाते हैं, और कहा मुहाफिज भी बन जाते हैं। मुहाफिज मुंह खावे आंख शर्मावे, मुहाफिज भी बन जाते हैं, खुद जिन्नात मुहाफिज बन जाते हैं, उनको ग़िज़ा मिलती है, फरिश्तों को ग़िज़ा मिलती है। अल्लाह की मदद फरिश्तों के जरिए आई थी बदर में। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी 5000 फरिश्तों की रिवायत तो मौजूद है, 500 फरिश्तों की रिवायत तो मौजूद है। क्या मेरा रब अकेला काफी नहीं था? क्या उसकी अमर ताकत नहीं थी? अल्लाह फिर जो इतर लगाता है बहुत ज्यादा, अल्लाह उसे फरिश्तों की मोहब्बत और मदद देता है। क्यों? फरिश्तों की ग़िज़ा है, वो फरिश्तों की ग़िज़ा है। मैंने कहा ना, आज भी मैं एक पूरी शीशी लगा के बैठा हूं, और शीशी भी बड़ी तोले वाली थी, छोटी कोई बेईमान शीशी कहना आई, बड़ी शीशी आई। जिंदगी में कुछ चीजों की जरूरत है, रूहानियत हमारी जरूरत है, और नस्लों में ये चीजें मुंतकिल होती हैं। सूरत इखलास नस्लों में मुंतकिल होती है, इसका नूर नस्लों में मुंतकिल होता है, इसकी बरकतें नस्लों में मुंतकिल होती हैं। कफन पे कभी आपने सोचा इतर क्यों लगाया जाता है? काफूर की शक्ल में खुशबू लगाई जाती है, इतर की शक्ल में लगाए जाते हैं। कभी सोचा कि फरिश्तों के साथ जब मुनकर नकीरैन आएंगे कब्र में, और फरिश्तों के साथ बंदा जब उठ के बातें करेगा, तो फरिश्तों को आते ही खुशबू की ग़िज़ा मिल जाए, फरिश्तों की ग़िज़ा आते ही मिल जाए, एक। और दूसरा, फरिश्ते नफासत को पसंद करते हैं, खुशबू को पसंद करते हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। धुला धुलाया मुर्दा इंसान और खुशबू के साथ पूरे बदन पे उसके खुशबू मलते हैं, कफन पे खुशबू मलते हैं। औलिया अकाबिर की अमल बता रहा था कि जो चाहता है कि मैं जागती आंखों से जिन देखूं, जागती आंखों से जिन देखूं, तो एक रिवायत में है 70 और एक में है 200 मरतबा तस्बीह पढ़े खुशबू लगा के। इसकी तस्बीह पढ़े सूरत इखलास की, सूरत कुल हुवल्लाह की तस्बीह पढ़े रोजाना, और वो नेक जिन्नात को हदिया करे, नेक जिन्नात को हदिया करे, और नेक जिन्नात उसको जागती आंखों से नजर आएंगे। ये बड़े बड़े औलिया के मुशाहिदात बता रहा हूं। अच्छा, आप ऐसा करें, 200 मरतबा सूरत इखलास रोजाना पढ़ें, ठीक? अब सारी नियतें कर लें, सब कुछ मिल जाएगा। रेस की नियत भी इसी में कर लें, जिन्नात को हदिये की नियत भी इसी में कर लें,